Good morning, students. Now, today we'll learn the next part or remaining part of the chapter garbage in, garbage out. Okay. See, in the last session, we have discussed about this table at last. What has happened to the garbage of the heaps? Okay, and you have to observe and fill this table. Now, what are the conclusions? We'll discuss first. If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil. See, if the garbage, अगर garbage में जो भी vegetable peels है या fruit scraps है, तो then it will at last completely rot and जब वो completely rot आ जाएगा तो उसमें से smell नहीं आएगी, तो उसको क्या करना है, soil के साथ mix करना है where you sow your favorite plants. Why? Because this would provide nutrients to the plants. Okay, so this is the manure. This is manure which we get from the garbage and we can use this for the plants. ये क्या बनाया हमने? Manure. Okay, so the rotting and conversion of some materials into manure is called composting. What? The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. In some cities and towns, municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. One is colored blue and the other is green. The blue bin is for materials that can be used again, such as plastics, metals and glass. Blue for plastic, glass and metals. Okay, and green for which? From kitchen and other plants or animal waste. Okay, so remember it. Have you noticed garbage heaps of the dried leaves on the roadside? Have you ever noticed like this? Okay, farmers burning this burning like this, harvesting, after harvesting जो भी वो वेस्ट बचता है उनको बर्न करना. Nowadays wheat season of wheat is going on, then you will notice more. then वो जो wheat निकालने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो भी बचता है उसका बर्निंग कर. सो इट इज़ नॉट प्रॉपर, ऐसे करना नहीं है. ओके, इट बिकॉज इट पॉल्यूट्स द एयर एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल टू अवर हेल्थ और नेचर. Now 16.2 vermicomposting. What is vermicomposting? Okay, so this is the method of preparing compost with the help of red worm. ये एक कंपोस्ट है जो हम रेड वर्म की हेल्प से बनाएंगे. दैट इज़ नॉन एज वर्मिकम्पोस्टिंग. ओके, ना क्या करना है, हमें एक पीट करना है, डीप खड्डा खोदना है, उसके अंदर वुडन बॉक्स रखना है, उसके अंदर थोड़ा चीज़ें डालनी, जो भी वेजिटेबल स्क्रैप्स है या चिकन मैश है सब डालना है. फिर उसके ऊपर हमें ये जो रेड वर्म्स है वो डालना है और उसको सॉइल में रख देना है और ऊपर मिट्टी डालना है. थोड़ा वो बहुत ही उसको प्रेस नहीं करना है. ठीक है, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करना है. सो क्या होगा आफ्टर, और थोड़ा थोड़ा फूड देना है. सो आफ्टर सम डेज हमें ऐसा दिखने मिलेगा, जो भी मैन्योर है दैट विल बी रेडी. ओके, बिकॉज अर्थवर्म का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपना फूड बनाता है, तो जो भी फूड है उससे जल्दी सॉइल के साथ मिक्स कर देता है. ओके, दे डू नॉट हैव टेथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड which helps them to grinding their food. Powder egg shells or sea shells could be mixed with the waste. This would help redworms in grinding their food. A redworm can eat food equal to its own weight in a day. ठीक है, redworms होता है ना अपने weight के जितना खाते हैं in a day. Redworms do not survive in a very hot or cold place. सो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करना है. दे नीड मॉइस्चर. थिंक इन थ्रू. How much of garbage do you think is thrown by you
each house every day? At least a bucket, है ना. आपके घर से एवरीडे आप कितना गार्बेज थ्रो करते हो? सो एटलीस्ट बकेट. सो सोचो, अगर हर एक घर से बकेट आया तो आपकी स्ट्रीट, आपकी पूरी विलेज, देन सिटी और पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में कितना होगा गार्बेज. सो थिंक एंड थ्रो. जो भी चीज़ हमें रिसाइकल कर सकती है तो उसको रिसाइकल करो. एक स्टोरी यहाँ पे दिया है नानो की. सो नानो वॉज अ चिल्ड्रन. वो अपनी आंट के घर पे गया. नानो घर पे क्या करता था, वो एवरीडे सब अपने बुक में से पेपर फाड़ के प्लेन बनाता था, यहाँ वहाँ थ्रो करता. वहाँ पे उसने देखा कि जो भी चीज़ थी, जैसे कि बास्केट था, सब रिसाइकलिंग पेपर से किया हुआ था. ठीक है. तो वहाँ पे फिर नानू का बर्थडे आया तो उसने वहाँ पर भी जो भी फाइल बनाई थी उसके कज़िन ने, श्याम ने, वो भी फाड़ डाली. तो नानू जब वहाँ पे गया तो उसने देखा, ही फाउंड दैट वहाँ पे कोई भी शॉपकीपर प्लास्टिक बैग नहीं दे रहा था, पेपर बैग और क्लॉथ बैग. ओके. और जो उसका कज़िन था श्याम, उसने जो नानू ने पेपर फाड़े थे उसको रिसाइकल किया और उसमें से उसने कैप बनाई, हैट बनाई, फिर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए. सो नानू वॉज अम्यूज्ड. नानू को बहुत ही सरप्राइज हुआ. सो ये एक विलेज है. नानू को देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग एक तो ज़्यादा गार्बेज नहीं करे और जो भी चीज़ हो रही है फिर से उसको फिर से यूज़ करें. सो हाउ टू रिसाइकल पेपर. तो इसमें एक मेथड दिए. जो भी न्यूज़पेपर है, ओल्ड मैगज़ीन है, जो भी पेजेस है, प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं होने चाहिए. उसको पानी में पूरी रात भिगो. ठीक है. देन 1 डे उसको भिगोना है. देन उसको हाथ से मैश करके जो भी आपके पास बास्केट है या कोई भी बाउल है, जो भी आपको जैसा शेप दे रहा है, उसके आउटर साइड या इनर साइड लगा दो. फिर सूखने पर उसको निकाल दो. सो यू विल गेट दैट शेप ऑफ यूटेंसिल लाइक. ओके. दैट शेप ऑफ थिंग. सो यू कैन यूज़. सपोज़ आपने एक बास्केट लिया और आपके बास्केट के अंदर बनाया और फिर निकाल दिया, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ना. मम्मी चपाती रखने के लिए यूज़ कर सकती है. देन जिंजर गार्लिक भी रख सकती है. मैनी मोर यूजेस आर देयर. ओके. सी 16 पॉइंट वही है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. नाउ प्लास्टिक्स बून और कर्स. प्लास्टिक अब हमारे लिए वरदान है या श्राप है, गुड और बैड. अगर हमने प्लास्टिक का ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया सो इट इज़ बून फॉर अस, बिकॉज प्लास्टिक का डिकम्पोज नहीं होता है. ओके. एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग टू मच प्लास्टिक. टॉय, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथ ब्रशेज, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स. द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग. ओके. सो the use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problems arise when we use of plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. This is what is happening all around us. So, being responsible, एक responsible citizen की तरह हमें प्लास्टिक का यूज़ करना है, लेकिन कम से कम करना है. ठीक है. अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो डोंट यूज़ प्लास्टिक के कैरी बैग्स. क्लॉथ बैग यूज़, पेपर बैग यू कैन यूज़. ओके. लेकिन अगर जिस चीज़ में ज़रूरत है उसमें करो, लेकिन जिस चीज़ में हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ बेटर फॉर आवर नेचर एंड आवर हेल्थ ऑल्सो. ओके. और कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स, इट इज़ वेरी हार्मफुल. ओके. क्योंकि शॉपकीपर ने वो प्लास्टिक बैग दैट हैव बीन यूज अर्लियर और समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स. देखिए, ऑल काइंड्स. अगर प्लास्टिक को बर्न किया सो इट गिव हाउस हार्मफुल गैसेस. ओके. एंड इट क्रिएट्स मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो laid down guidelines for recycling plastic. You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing this. Sometimes they die due to this. तो हमें जो भी घर का कचरा डाल रहे वो भी प्लास्टिक बैग में भर के नहीं डालना, ऐसे ही डालो. ओके. सी what can we do to minimize overuse of plastic? Some rules are given here. We make minimum use of plastic bags, reuse. Okay. Insist shopkeeper to use paper bags or cloth bags.
Do not store eatable things in plastic bags. Do not throw plastic bags here and there. Do not burn plastic things. Do not put garbage in plastic bags. Use vermicomposting. Recycle paper. Write on the both side of the paper. And tell also, inform our family, friends and other follow. Okay. समटाइम्स अगर हमने यहाँ वहाँ प्लास्टिक डाल दिया तो ड्रेनेज सिस्टम जो भी गटर की सिस्टम है उसमें वो अटक जाता है, देन पानी का खड्डा होता है, देन मॉस्किटोज होते हैं। और ड्यूरिंग रेनी सीज़न क्या होता है, बहुत ही पानी पड़ता है, कम बारिश में भी फ्लड जैसी हमारी सिचुएशन हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू।